तो हेलो दोस्तों, वेलकम यू टू माय चैनल। सो टुडे हम इशिता राठी मैम की आंसर कॉपी को एनालाइज करेंगे। सो दिस इज़ माय थर्ड और फोर्थ वीडियो ऑन यूट्यूब। आई एम नॉट रियली गुड एट मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़, बट आई एम ट्राइंग बिकॉज आई हैव फेल्ड 3 mains and I believe that by analyzing Topper's copy I can understand what went wrong in my mains. So that's why I'm analyzing this copy in front of you from my perspective. So let us start. So here at the beginning they have given us a direction that the content of the answer is more important than its the length. So what they mean is that answer should be concise, right, to the point, और क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको एड्रेस करने वाला होना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। तो देखते हैं कि इशिता राठी मैम ने ये कैसे किया है। तो लेट्स एनालाइज फर्स्ट क्वेश्चन शी हैज़ रिटन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ऑल अबाउट एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम एंड दे हैव आस्क्ड अस टू explain it through 3 methods, that is value added method, income method and expenditure method. तो चलो देखते हैं कैसे लिखा है ये आंसर। सो शी हैज़ written an introduction here. It's a definition of national income in a very short manner. So this is the one way to write a definition, write a way to introduction. So you can write definition of the keyword, you can write context of this question. अगर सपोज कि नेशनल इनकम घटा हुआ है कोविड की वजह से, तो यू कैन गिव सम डेटा पॉइंट टू एक्सप्लेन दैट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट दिस क्वेश्चन हैज़ कम। और तीसरा होता है कि तुम सीधा एक्सप्लेन करो जो की टर्म है उसकी। सो दैट इज़ 3 different ways you can actually start introduction. So let us start. So in the body she has written 3 different so she has written not a definition, but she has written formula of national income by expenditure method. So it consists of consumption, investment, government expenditure and export import. रट्टा मारना ही बेहतर है, बिकॉज मुझे लगता है कि रट्टा मारना इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें बिना रट्टा किए याद नहीं रहेगी, तो रट्टा मारना ही है। एंड शी हैज़ गिवन हियर सम डेटा पॉइंट that how much percentage of consumption contributing to the GDP. That consumption contributes 60% of the GDP, investment contribute 30% of the GDP, and government expenditure plus net export contribute 10% of the GDP. I guess net export is very less, so we can even neglect it because we import more than export. So government expenditure is about 10% of the GDP. So इसका मतलब ये है कि अगर हम कंजप्शन को बढ़ावा दें या इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ने वाली है। तो सेकंड है कि वैल्यू एडेड मेथड। तो शी हैज़ गिवन फार्मूला फॉर वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, उससे इन्वेस्टमेंट ऑफ जो इंटरमीडिएट गुड है उसको माइनस करना है। सो एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू नेशनल इनकम। थर्ड है कि इनकम मेथड। इनकम मेथड का फॉर्मूला है कि वेजेस, प्रॉफिट, रेंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि वेजेस हम जो लेबर को देते हैं, प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर लेके जाते हैं, रेंट हम जो लैंड परचेस किए हुए हैं और रेंट पे लिए उसका रेंट, और इंटरेस्ट पेमेंट मतलब हम जो बैंक से कैपिटल उधार लेते हैं उसका इंटरेस्ट। सो ये ऐसे इंटरेस्ट इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम। फर्दर शी हैज़ एक्सप्लेन्ड these 3 methods by giving one example. So she has given one example of bread production in the economy. The expenditure incurred to buy bread through expenditure, the price of bread minus price of flour. So इसे माइनस किया है इंटरमीडिएट गुड को, तो उससे हमारी वैल्यू एडेड मेथड से क्या पता है, नेशनल इनकम पता चलता है। देन वेजेस पेड टू द लेबर एंड रेंट एंड लैंड। सो ये शॉर्ट पॉइंट है जिससे उन्होंने
एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे ये तीनों मेथड से हम इनकम कैलकुलेट कर दें. एंड देन कम्स एट द एंड शी, I don't know what this has written, identify national income identifies, maybe she has mean identical, NI is identical by expenditure method, value added method and income method. I guess the conclusion missing over here, so we can add some conclusion here. So I have written one conclusion here which she could have added. Calculating GDP is a complex task. Economists employ mix of three methods to arrive at a fair GDP number. However, calculated by any of the above methods should ideally produce the same number. अगर हम GDP किसी भी एक मेथड से अगर कैलकुलेट करें तो वो सेम ही आना चाहिए. तो ये था हमारा पहला आंसर. तो कंक्लूजन में हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं. तो कंक्लूजन ये है कि ये सारी टर्म 12th NCERT में है. तो अगर हम NCERT से ऊपर से पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला. अगर हम अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो तो उसे वर्ड बाय वर्ड प्रोड्यूस करना डिफ़िकल्ट होता है. तो रट्टा मारना ये बहुत इम्पोर्टेंट है. इन सारी चीज़ों का जो की टर्म का रट्टा मारना इम्पोर्टेंट है. सो रट्टाफिकेशन शुड फॉर्म 50% ऑफ योर एफर्ट. और ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 3 मेंस दिए हैं. ऑन द स्पॉट डेटा प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. मेंस में इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता. वहाँ टाइम बुलेट ट्रेन की गति से भागता है. तो इसलिए मैं बताता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो ये सारी जो की टर्म उसका रट्टा मारो. रट्टा मारने से ही मेंस क्लियर होंगी. Alright, so hope you have liked this video. We'll come up with the next question in the next video. Thank you for listening. If possible, subscribe and like this video. This will motivate me. And if you want me to produce more videos, please comment in comment section. So thank you. Stay healthy, stay fit.